جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر 45 کو نیچے کر کے اس کا ترجمہ کر کے آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من أعوذ الشیطان بالله الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اس کو ٹھیک کیجیے گا جی، اب میرا خیال ہے کوئی شیڈ آ گیا ہے۔ نہیں سر، یہ اصل میں تھوڑا ہینگ ہو گیا ہے، I don't know کس وجہ سے ہو گیا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں، دوبارہ مجھے 2 منٹ۔ ہاں جی، ہو گیا جی، ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے، جی سر۔ چلیں جی۔ ہم نے جی پچھلی پڑھی تھی آیت، جس کا میں ہی ترجمہ کر دیتا ہوں اور پھر اس آیت کے ساتھ 46 آیت ملائیں گے سورہ النحل کی۔ تو جی افا امن الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی، کس بات سے؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ زمین کو دنسا دے، او یاتیہم العذاب، یا ان پر عذاب لے آئے، یا عذاب آ جائے، من حیث لا یشعرون، اس جگہ سے جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، جہاں سے وہ نہ سمجھتے ہوں۔ اسی کو آگے لا لکھا ہوا ہے، عذاب ہی کے بارے میں ہے، او یاخذہم، یا وہ عذاب انہیں پکڑ لے۔ او یاخذہم کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ یا وہ عذاب انہیں پکڑ لے۔ یا وہ عذاب ان کو پکڑ لے، فی تقلبہم، اب تقلب کہتے ہیں چلنا پھرنا، سٹرول، واک اراؤنڈ، جی، جی جی کہ جب وہ عذاب انہیں پکڑ لے ان کے چلتے پھرتے ہوئے، فی تقلبہم، ان کے چلتے چلتے پھرتے ہوئے۔ پھرتے ہوئے۔ چلتے پھرتے ہوئے، وما ہم بمعجزین، ترجمہ کریں جی۔ تو نہیں ہے وہ اسے عاجز کرنے والے۔ اور عاجز کر نہیں ہے وہ اسے عاجز کرنے والے۔ عاجز کرنے والے کا مطلب کیا ہے جی؟ ان کو روکنے والے یا جو وہ کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عذاب لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کو عاجز کوئی نہیں کر سکتا۔ جی اللہ نے تو ایک حکم دینا ہے اور سب چیزوں نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں جی۔ آؤ، ابھی تیسری چیز آ رہی ہے۔ پہلی چیز ہے کہ اس بات سے بے خبر ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دنسا دے، پہلے لوگوں کو دنسایا، اور کل ہم نے دیکھا تھا کہ جو صورتحال اس وقت شام اور ترکی کے اندر بنی ہوئی ہے یا پاکستان کے اندر بنی، تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے یہ چیزیں ہمیں دکھاتا رہتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ دنسا دے، کو عذاب ایسے بھی آ سکتا ہے کہ جب وہ چل پھر رہے ہوں اور اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، اور وہ عذاب ممکن ہے کوئی چیخ چنگھاڑ کی شکل میں ہو، ہوا کی شکل میں ہو، طوفان کی شکل میں ہو، او یاخذہم علی تخوف، تخوف کا ترجمہ جو ہے وہ خوف زدہ ہی کریں گے ہم لوگ، اور اس کے معنی ہے آہستہ آہستہ کم ہونا۔
آہستہ آہستہ نقصان کے اندر جانا، یہ تخوف کے معنی ہیں جو عربی کے اندر آتے ہیں۔ تو ہم نے چونکہ خوف پڑا ہوا ہے، او یأخذہم علی تخوف، تخوف، یا وہ عذاب ان کو پکڑ لے ان کے خوف زدہ ہونے پر۔ جی، او یاخذہم علی تخوف کا ترجمہ، یا یا ان وہ یا آپ وہ عذاب انہیں ان کے خوفزدہ ہونے پر پکڑ لے۔ جی ٹھیک ہے، جب وہ خوف زدہ ہوں تو اس وقت عذاب ان کو پکڑ لے۔ یہ مطلب ہے کیسے ہوگا کہ اپنا پہلے کوئی آثار ایسے دکھائی دیں کہ اب وہ جی شمال سے بڑے بادل اس قسم کے آئے ہیں، وہ زرد کیا نام ہے، ریڈ ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور اس سے خوف طاری ہو جائے اور وہ عذاب آہستہ آہستہ ان کو وہ پکڑ لے، یہ ہے مسئلہ۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ کا ترجمہ سب کو انشاءاللہ آتا ہے جی۔ اور وَإِنَّ رَبَّكُمْ، بے شک تمہارا رب، یہ کے ساتھ اور بے شک تمہارا رب، لا، یقینا یقیناً یقیناً، رعوف الرحیم، یقیناً بہت زیادہ بہت زیادہ شفقت کا شفقت کرنے والا اور انتہائی جی مہربان ہے۔ بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور رعوف کا مطلب ہے نرمی دکھانے والا، یہ بھی کہا تھا جی۔ تو ہم نے شفقت کرنے والا جو ہے اس پہ رضامندی ظاہر کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ جی 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 ان دو آیات کا ترجمہ پھر ہیں پروفیسر صاحب تو وہ کر دیں گے۔ جی، او یأخذہم فی تقلبہم، یا انہیں عذاب پکڑ لے ان کے چلتے پھرتے ہوئے، فما ہم بمعجزین، اور وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ او یأخذہم، یا وہ عذاب انہیں پکڑ لے علی تخوف، خوف کی حالت میں، فإن ربکم، بے شک تمہارا رب، لرؤوف الرحیم، بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اچھا پروفیسر بالکل صاحب، یہ ٹھیک ہے جی۔ فا کے ساتھ ہے، وا نہیں ہے، فإن ربکم۔ جی میں نے اگر پڑھا ہے تو فَإِنَّ رَبَّكُمْ، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا جی، یہ آیت ہے جو اگلی آ رہی ہے، بڑی اہم آیت ہے، ذرا تھوڑا سا اونچا کیجئے اور ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہاں جی تھوڑا سا اوپر، آگے سجدہ مطلب آ رہا ہے، اور سجدے کے بارے میں پہلے یہ بتا دوں کہ سجدہ کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن اگر رہ جاتا ہے تو اس سے گناہ نہیں ہوتا جی۔ جی جی جی، میں نے ٹھیک کیا کہا؟ کہ سجدہ سجدہ کرنا کرنا ثواب کا کام ہے۔ ایسا گناہ نہیں ہے۔ کون سا سجدہ؟ سجدہ تلاوت، تلاوت ٹھیک ہے جی۔ اس جی لیے جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تو سجدہ کیا، باقاعدہ ممبر کے اوپر آیت پڑھی گئی، اور آیت پڑھتے ہوئے انہوں نے خطبے کو چھوڑا اور خطبے کو چھوڑ کے بھی اپنا سجدہ کیا جی۔ جی دوسری جی دفعہ جب آئے تو یہی آیت پڑھی، اور جو میں نے الفاظ کہے مفہوم اس کا یہی کہ اگر سجدہ کر لیں، بھلے بھی اسے فرض نہ سمجھیں، اگر سجدہ کر لیں تو اس کا ثواب ہے، اور اگر نہیں ہوتا یا نہیں کرتے تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی اچھا جی، آیت سجدہ جو ہے یہ بڑی زبردست قسم کی آیت ہے۔ وہ کیسے کہ دنیا کے اندر اشرف المخلوقات کون سمجھتا ہے اپنے آپ کو جی؟ انسان۔ انسان۔ ہر انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے، لیکن اس کا اشرف ہونا اس چیز پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے تو وہ اشرف بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی رہنمائی کے لیے یا انسان کی رہنمائی کے لیے یہ جو کہا کہ بھی تمہارے ارد گرد جتنی بھی کائنات ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں،
خاص طور پر ہمارے سورج کا جو اپنا نظام شمسی ہے، سولر سسٹم کہیں گے، کیا کہیں گے جی؟ سولر جی سسٹم. سولر ہاں سسٹم جی، ہی ہے۔ بالکل جی۔ تو سولر سسٹم کے اندر تو پتہ ہے کہ بھی ایک سورج ہے، اور جتنے بھی سیارے ہیں، خاص طور پر زمین، اس کے اوپر سائے بنتے ہیں ہمارے، اور ہر جگہ پہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سایوں کو کیا کہا، کیوں سائے بنتے ہیں؟ یہ بلا وجہ نہیں بنتے کہ ما خلقت ھذا باطلا، جو قرآن مجید کی آیت آئی ہے کہ بھی جو اللہ کے بندے ہیں غور و فکر کرنے والے، وہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی رہنمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ، لفظ نیا ہے، یتفیأ، کیا مطلب ہے یتفیأ کا؟ کہ ڈھلتے ہیں جی، گرتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں۔ کون؟ ظلالہ، ذل آپ نے پڑھا ہوا ہے، سائے، سایہ. اس کا سایہ، سائے، ٹھیک ہے اس کا یہ سایہ۔ ذل کے دو معنی یاد رکھیے۔ ظلہ کا اگر آ جائے گا تو اس کا مطلب اصبح ہو جاتا ہے، ہو جانا، ظلہ، لیکن دن کے وقت۔ اور باتا یبیتون، یہ اگر آ جاتا ہے تو وہ پہلے بھی بتا چکے ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ رات سے۔ رات. رات کے۔ لیکن یہاں بھی ظلالہ آ رہا ہے، ذل کی جمع ہے ظلالہ، ترجمہ کیا بنے گا؟ ان اس کے کے سائے، سائے. ان کے اس سائے۔ کے سائے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو لے رہا ہے، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اوپر دوبارہ پڑھتا ہوں، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کوئی بھی چیز جو پیدا کی ہے، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، یمین کس کو کہتے ہیں؟ دائیں، دائیں، دائیں طرف۔ شمائل کس کو کہتے ہیں؟ بائیں، بائیں طرف. بائیں طرف۔ بائیں. بائیں اطراف۔ یمین واحد ہے، شمائل جمع ہے، اور بڑی خوبصورت اس کے اندر چیز مفسرین نے بتائی، وہ ہم دیکھیں گے۔ ان الیمین والشمائل سجدا للہ، کیوں جی؟ ابھی پڑھیں گے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وَهُمْ داخرون، داخرون کا مطلب ہے عاجزی دکھانے والے، جیسے خاشعین ہوتا ہے خشوع کرنا اور ساتھ عاجزی کے ساتھ، اس طریقے سے داخر بھی عاجزی دکھانا ہے بندگی کے اندر۔ تو آپ پڑھتے ہیں جی اولم یروا، کیا کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ ماشاءاللہ، یروا کے ساتھ لم آیا ہوا ہے تو ماضی نفی آ جائے گا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ الا ما خلق اللہ، اس کی طرف اللہ نے جو اللہ نے پیدا کیا۔ جی، ان کی اس چیز کی طرف جو اللہ نے پیدا کی، من شیء، کوئی بھی کسی، چیز۔ کوئی بھی چیز۔ اب یہ تھوڑا ترجمہ کے اندر آئے گا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے جو چیز بھی پیدا کی ہے؟ بالکل جی، جی۔ ترجمہ جی جی. پہ دوبارہ کریں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس چیز کی طرف جو جو اللہ نے پیدا جو کی بھی ہے. اللہ نے پیدا کی ہے۔ جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے، بڑا زبردست ہے یہ، ہے کون، کائنات کا حصہ، جو بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ یتفیأ ظلالہ، ڈھل اس کے جاتے ہیں اس کے سائے، سایہ نہیں، سائے۔ سائے، تو ڈھلتے ہیں۔ یتفیأ نیا لفظ ہوگا، اس کو ذرا دوبارہ دیکھیں۔ یتفیأ کے معنی کیا بتائے؟
लंबे होते हैं। हो जाना है। ढलते हैं। बस कि अभी ढलना लंबे बाद में आ जाएगा। ढलते हैं ज़िलालुहु, उसके साए उसके साए, अनिल यमीनी, दाएं तरफ, दाएं तरफ से, व शमाइल, और और बाएं बाईं अतराफ, अतराफ से। जी, बाईं अतराफ से, सुज्जदा, सुज्जदन लिल्लाह, अल्लाह के अल्लाह को, लिए सजदा करते हुए। अल्लाह के लिए सजदा करते। तो देख लें, हम सोचते हैं कि ये सूरज चूंकि मशरक की तरफ है, हमारा जो साया है वो मगरिब की तरफ होता है। जब वो मगरिब की तरफ आ जाता है तो हमारा साया किस तरफ आ जाता है? मशरक की तरफ। मशरिक की तरफ। ऐसा है ना? जी क्यों जी? जी अल्लाह ने कहा कि ये बेमकसद नहीं है। ये क्या करते हैं? अल्लाह को, सजदा करते। अल्लाह को सजदा करते हैं। वहुम दाखिरून, और वो आजिज़ी करने वाले हैं। और वो आजिज़ी करने वाले। आजिज़ी करने वाले हैं। खूबसूरत इसके अंदर जो चीज लगी वो ये है कि जब सूरज का साया बिल्कुल ऐसे होता है अपना, ये एक मुफस्सर है, उन्होंने, इमाम राजी हैं जिन्होंने शायद किया, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, उन्होंने इसकी तफसीर की कि बिल्कुल आप समझ लें कि 12 बजे का सूरज ऐन आपके सर के ऊपर है, तो आपका साया कहाँ होगा? जमीन पर, पैरों की तरफ। जी, पाँव की तरफ, बल्कि साया आपको दिखाई नहीं देगा, नीचे ही होगा। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसा वो चीज खड़ी है, सब चीजों के साए नीचे होते हैं। ऐसे ही है। जी सर। जी और जब ढलता है तो फिर क्या होता है? एक तरफ लंबे को होते साए लंबे होने शुरू हो जाते वो थोड़ा लंबा होता जाता है, ये तफैया लंबे होते जाते हैं। आपने भी कहा ढलते जाते हैं, लंबे होते जाते हैं। तो वो थोड़ी देर जाएंगे तो मुमकिन है वो रुकू की शक्ल में जाएं। हम भी ऐसा करते हैं कि जब क़ियाम होता है तो अल्लाह के सामने झुकते हैं, तो थोड़ा सा नीचे होते हैं। ऐसा ही है। जी जी फिर जी हम तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन साया क्या करता है? साया और लंबा हो जाता है। जी जी, जी। जी साया वक्त के साथ साथ और लंबा हो जाता है, और वो सजदे की हालत में होता है, जैसे हम क़ियाम के बाद रुकू में और रुकू के बाद सजदे के अंदर जाते हैं। क्यों जी? जी जी सर। तो बताया ये गया है कि दुनिया की हर एक चीज नमाज पढ़ रही है। कुरान मजीद के अल्फाज हैं ये बाकायदा, कि हर एक चीज अपनी नमाज पढ़ना जानती है। जी, जी यालमुस्सलातुहु लफ्ज आता है कि वो अपनी नमाज को जानती है। तो ये भी चीजें जो हैं ये अपनी नमाज पढ़ रही होती हैं, सुज्जदन लिल्लाह व हुम दाखिरून, और वो आजिज़ी करने वाले होते हैं। ठीक है जी। जी सर। जी अच्छा जी, अब इसके आगे पढ़ते हैं, फिर हम अपना कैसर भाई से कहेंगे कि वो करें। वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। वलिल्लाहि, और अल्लाह के लिए और अल्लाह के लिए, यसजुदु, सजदा करता है। अच्छा जी, यसजुदु सजदा करता है, लेकिन जुमला फेलिया हो, फेल तो फेल हमेशा वाहिद आता है। तो फिर उसके बाद देखना है कि जो उसके अपना फाइल हैं वो जमा है, वाहिद है, उसके मुताबिक फिर यसजुदु का तर्जमा करना है। तो माफिस समावाती तर्जमा जो करेंगे जो जो कुछ आसमानों में है जो कुछ आसमानों में है, वमा फिल आर्दी, और और जो जो कुछ कुछ जमीन में है। जमीन में है। जी, ठीक है। तो तर्जमा बनेगा, जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है करेंगे तो सजदा करता है करेंगे। और अगर कहेंगे जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो अल्लाह के लिए सजदा करते हैं। करते हैं। जी, सजदा करते हैं। मिन दाब्बतिम,
दाब कहते चौपाओं हैं में से। चलने वाले चौपाए, चलने वाले चौपाए जी। मिन दाब्बतिन चलने वाले चौपायों चौपाए, में से। चौपायों में चौपाए से। जी, चौपाओं में से ही, ठीक है। मैंने बताया था, कभी मैंने कई दफा ऐसा आता है कि जैसे चलने वाले चौपाए। अब चौपाए को तो अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि या वो रुकू के अंदर हैं, और अगर नीचे होते हैं तो वो सजदे की हालत में होते हैं। अल्लाह ताला ने उसको बिल्कुल सीधा बनाया ही नहीं। इंसान के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो इन चीजों के अंदर जो बिल्कुल सीधी खड़ी हो सकती हो। थोड़ी देर के लिए होगी, उसके बाद गिर जाएगी। तो बहरहाल ये तो अलग चीज है कि मिन दाब्बतिन चलने वाले चौपाओं में से, वल मलाइकतु और फरिश्ते। और फरिश्ते भी। ये सारे के सारे, मैं दोबारा करता हूँ, अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं। जो कोई आसमानों और जो कोई जमीन में है, मिन दाब्बतिन चौपाओं, चलने फिरने वाले, लफ्ज के समय चलने फिरने वाले चौपाओं में से, वल मलाइकतु और फरिश्ते भी। अब सजदा जो है उसका उलट क्या है? तकब्बुर। तकब्बुर। वहुम ला यस्तकबिरून, और और वो तकब्बुर नहीं करते। तकब्बुर नहीं करते। बिल्कुल जी। कि सजदे की हालत के अंदर उनकी जिंदगी गुजरी हुई है, फरिश्ते भी और कायनात के अंदर चल फिर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, और वो जो काम करना है उनका वही सजदा करना है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि यखाफून रब्बहुम, वो अपने रब से डरते हैं। करते हैं। वो अपने रब से डरते हैं। इसमें एक तो ये है कि मलाइका, और दूसरा ये है कि जितने भी आसमानों और जमीन के अंदर चीजें हैं, और ये चलने वाले चौपाए हैं और फरिश्ते हैं, सब की तरफ अगर जमीर है, ये खाफूना, और रब्बहुम वो अपने रब से डरते डरते हैं। हैं। करते हैं। मिम फाउकी हिम, जो अपने उनके मतलब ऊपर जो है। उनके ऊपर है। फौक कहते हैं ऊपर को, ताहत कहते हैं नीचे को। एक होता है ऑन, अला, और एक कहता है ओवर, ऊपर जी। जी। जिसके अंदर जिस चीज पर होता है उसके अंदर दरमियान में वह एक फासला होता है, तो वो फौक कहते हैं। तो वो डरते हैं अपने रब से जो उनके ऊपर है। वह यफअलूना, तर्जमा करें जी, वह यफअलूना, और वो और वो करते करते हैं और वो करते हैं मा युअमरून, मजहूल जुमला है। जिसका जिसका उन्हें उन्हें हुक्म दिया जाता है। जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है वो करते हैं काम जी। तो ये है जनाब हमारा सबक। और इसके अंदर जो चीज़ ये है कि कायनात की अगर सारी चीज़ें अल्लाह को सजदा कर रही हैं, अल्लाह ताला कह रहा है कि आपका सजदा करने का अंदाज और है, और बाकी चीज़ें जो हैं उनका मैंने सजदा करने का अंदाज, और उसको मैं सजदा ही कह रहा हूँ कि सुज्जदन लिल्लाह, तो वो साया सजदा कर रहा होता है। तो लिहाजा जमीन व आसमान के अंदर जो चीजें हैं, बाकी इंसान के अलावा, वो उनकी चिप भी ऐसी लगा दी गई है, और फरिश्ते भी, कि वो अल्लाह ताला के सामने सजदा करते हैं। एक इंसान है कि जिसको वो कुव्वत अख्तियारी मतलब दे दी गई, चाहे तो सजदा करे चाहे तो ना सजदा करे, और उसको कहा कि भाई तुम अगर इन सारी चीजों से सबक हासिल कर सकते हो, तुम हो अशरफुल मखलूकात, और वो अशरफुल मखलूकात तुम उनको मानते नहीं। तो जो नहीं है अशरफुल मखलूकात, वो अल्लाह को सजदा करके तुम्हें दर्स दे रही हैं और अल्लाह के सामने आजिजी। तो इंसान को क्या करना चाहिए जी? इंसान को भी सजदा वही करना चाहिए ज्यादा अल्लाह वही को। ज्यादा सलाम। इंसान को तो सजदा करते ही रहना चाहिए, इसलिए कि वो अशरफुल मखलूकात है। तो इंशाअल्लाह कुरान, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान जब सजदे की हालत में होता है तो इससे ज्यादा वो अल्लाह के करीब नहीं होता। लिहाजा क्या है, तुम अपनी दुआओं की कसरत किया करो सजदे में। ये हदीस मुबारक है।
ठीक है जी, चलें जी अब अपना कैसर भाई। अवलम यरौ, क्या उन्होंने नहीं देखा, इला मा खलक़ल्लाहु मिन शै, कि जो कुछ भी अल्लाह ने पैदा किया, यतफ़य्यउ, किसी चीज में से, जी किसी चीज में से पैदा किया, जी, माँ यतफ़य्य, का भी है और शाही भी है, तो इसको सरा हो जाएगा, दोबारा कर लें। अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शै, क्या उन्होंने नहीं देखा उसकी तरफ जो कुछ अल्लाह ताला ने किसी भी चीज से पैदा किया, यतफ़य्यउ ज़िलालहु, ज़िलालुहु, उसके साए बुलंद होते हैं, लंबे उसके होते हैं, साए ढलते हैं। जी ढलते हैं, उसके साए जी, ढलते हैं, अनिल यमीनी, दाई तरफ, वल शमाइल, और बाएं अतराफ, बाएं अतराफ, जी। सुज्जदन लिल्लाही, वो अल्लाह को सजदा करते हैं। नहीं, सुज्जदन यतफय्यउ सुज्जदन लिल्लाह अच्छा, है असल में, वो अच्छा, ढलते हैं सजदा सजदा करते करते हुए हुए, अल्लाह के लिए। जी, वो अल्लाह के लिए सजदा करते हुए ढलते हैं, वहुम दाखिरून, और वो आजिज़ी दिखाने वाले हैं, आजिज़ी करने वाले हैं। आज भी वलिल करने वाले हैं, दोबारा कह दीजिए, दोबारा जरा ऊपर से अवलम यरौ। अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन, क्या उन्होंने नहीं देखा उस चीज की तरफ जो कुछ अल्लाह ताला ने किसी चीज से पैदा किया, यतफ़य्यउ ज़िलालुहु, उसके साए ढलते हैं, अनिल यमीनी, दाई दाई तरफ से, वल शमाइल, और बाई अतराफ, सुज्जदन लिल्लाही, अल्लाह को सजदा करते हुए, वहुम दाखिरून, और वो आजदी करने वाले हैं। वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि, और अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, मिन दाब्बतिन वल मलाइकतु, चलने वाले चारपायों में से और फरिश्ते भी, वहुम ला चौपायों यस्तक में से, जी। चौपायों में से और फरिश्ते भी, वहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते, यखाफून रब्बहुम, वो अपने रब से डरते हैं, मिन फौकिहिम, जो उनके ऊपर है, व यफअलून मा युमरून, और वो करते हैं जैसा उन्हें हुक्म दिया जाता है। बस ये है चीज अतात के जो वो करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है, तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए। अब अल्लाह ताला आमीन, कहता है आमीन। कि है अल्लाह जिसकी अतात इंसान के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो तो हम व करहन, खुशी से या नाखुशी से वो कर ही रही हैं। तो इंसान खुशी से करेगा तो उसके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह की रजा और जन्नत, और अगर नाखुशी से करेगा भी तो तब भी यह है कि अल्लाह कबूल करने वाला है, और करेगा ही नहीं तो फिर अल्लाह की नाफरमानी है। तो अल्लाह ताला है कि और, वक़ाल अल्लाहु और अल्लाह ला ने फरमाया, तत्तखिजू इलाहैनि इस्नैनि, ताकीद के लिए है, वरना इलाहैन ही तस्निया है, इस नईन भी आ गया, तो हम इसका तर्जमा करेंगे दो दो माबूद। वैसे तर्जमा है दो माबूद, यानी कि एक अल्लाह और एक अल्लाह के साथ किसी और को माबूद बना लेना, जी, ये हो गए इलाहैन। समझा पा रहा हूँ? जी जी। बिल्कुल जी, सर। इलाहैन इस्नैन इन्नमा हुवा इलाहुम वाहिद फइय्याया फरहबून। पहले पारे में पढ़ा था फरहबून, जी, पढ़ा था ना, जी, जी डरो, जी। मुझी डरना। से डरो। जी जी, मुझी से डरो। तो जी वक़ाल अल्लाह तर्जमा करें। और अल्लाह ने फरमाया, और अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने कहा ला तत्तखिजू, तुम मत मत बनाओ बनो तुम मत बनाओ इलाहैन इस्नैनि, दो 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 माबूद। दो माबूद। तो तर्जमा पूरा क्या बनेगा जी? और अल्लाह ने अल्लाह ने कहा, फरमाया कि तुम दो दो माबूद मत बना, आओ। जी अल्लाह ने कहा कि तुम दो दो माबूद मत बनाओ, इन्नमा हुआ, बेशक वो, बेशक वो
बेशक वो इलाहुं वाहिद, वो अकेला माबूद अकेला एक अकेला वा- माबूद। माबूद है। वो अकेला माबूद है। बस, बेशक वो अकेला माबूद है, अकेला माबूद ये है। अल्लाह ने फरमाया। तो अब क्या है, डायरेक्ट अल्लाह ताला बता रहा है, फ़इया या, मुझ ही से, फरहबून। फरहबून क्या था असल में? डरो। डरो। डरना है, डर ये था फरहबूनी जी, जी मुझसे डरो। मुझ ही जी से मुझसे, वो ये के अंदर आ गया। तो फरहबून, तो तुम सिर्फ मुझसे, मुझ ही से डरो। तो तुम मुझ सिर्फ ही से मुझ ही डरो। से डरो। ठीक है जी। जी जी जी। जी अपने चिश्ती साहब। जी सर। वक़ाल अल्लाह, और अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तत्तखिजू इलाहैन इस्नैन, कि तुम दो दो माबूद मत बनाओ। इन्नमा, बेशक, हुआ वो, इलाहुन वाहिद, अकेला माबूद है। इलाहुं वाहिद। इलाहुन वाहिद, अकेला माबूद है। फ़इया या फरहबून, तो मुझ ही से डरो। तो तुम मुझ ही से डरो। अच्छा जी, अब आज जनाब नया लफ्ज है आज एक अगली आयत के अंदर, वलहू मा फिस समावाति वल अर्दी। ये पहले हमने पढ़ा है और तर्जुमा आता है सबको। और वलहु दीनु, दीन का तर्जमे दो हुए हैं। एक तो दीन, दीन क्या चीज होता है जी? एक तो रास्ते रास्ता। को जी, हुकूमत इन रास्ता। दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक जिंदगी दीन गुजारने अल्लाह का के नजदीक तरीका। इस्लाम है। तरीका जिंदगी, जी तरीका इबादत, ये सारे के सारे दीन के अंदर आ जाते हैं। तो दीन के मानी अताअत भी है, दीन के मानी तरीका जिंदगी भी है, दीन के मानी दीन भी है। लेकिन वासिबा का मतलब मैं बताने वाला हूं। वासिब के दो मानी हैं, एक है लाजिम और एक है वासिब हमेशा हमेशा के लिए। जी, तो जी हम दोनों तर्जमा करेंगे। हमेशा हमेशा के लिए लाजिम, जी उसी अल्लाह के लिए है दीन, हमेशा के लिए लाजिम। ला, लाजिम। तो लाजिम। दोनों मानी वासिबा में आ जाएंगे। लाजिम। ठीक है जी। जी जी जी। अफ़गैर अल्लाह तत्तकून, ये सवाल अल्लाह ताला पूछ रहा है के ऊपर पूरा लेक्चर दिया कि कौनो मकान के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो अल्लाह ताला की इबादत कर रही हैं। तो तुम अल्लाह के अलावा अगर किसी को माबूद बनाते हो तो वो दो बन जाएंगे। तो तुम वो ना बनाओ, अल्लाह ताला एक ही माबूद है और सिर्फ मुझी से डरो। तो अब तर्जमा पढ़ते हैं जी, वलहू मा फिस समावाति वल अर्द। तर्जमा करें जी। उसी के उसी लिए के लिए है जो जो कुछ कुछ आसमानों और आसमानों जमीन में है। में है। जी, उसी ही के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। और वालहू, और उसी के लिए है। उसी और के लिए उसी ही के लिए है। अदीनों का तर्जमा दीन ही करें जी, लेकिन तर्जमा ये कर लें अतात, बंदगी, इबादत, ये सारे के सारे माने दीन के हैं। तो हम इसका तर्जमा दीन ही कर रहे हैं। दीन वासिबा, हमेशा 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 के लिए लाजिम लाजिम। जी। तो वालाहुद्दीनुल वासिबा का तर्जमा क्या करेंगे? और और उसी के उसी लिए के है लिए दीन हमेशा हमेशा के लिए लाजिम। हमेशा के लिए लाजम। जी, वालाहुद्दीनु, दीनु वासिबा, वासिबा नहीं। अफा गैर अल्लाह तत्तकून, क्या तुम अल्लाह को, अल्लाह अल्लाह के के अलावा अल्लाह को छोड़कर छोड़कर किसी से डरते हो? एक तो डरते हो। तर्जमा ये है। क्या जी तुम गैर अल्लाह से डरते हो? हम्म। क्या तुम अल्लाह के अलावा किसी से डरते हो? क्या तर्जमा करना है जी?
या तुम गैर अल्लाह से डरते हो? गैरुल्लाह से डरते हो। गैर अल्लाह, ठीक है जी। जी ठीक है सर। जी ठीक है सर। जी। क्या जी तुम गैर अल्लाह से तत्तकून डरते हो, यानी कि तकवा के लिहाज से, कि मैं ये इबादत कर रहा हूँ कहीं ये मुझे जहन्नम के अंदर ना फेंक दे जी, गुनाह करते हुए, तो क्या तुम अल्लाह के इला गैर अल्लाह से डरते हो? ये वाली चीज आ गई जी। अपने गुलाम सरवर भाई। वलहु मा फिस समावाति वल अर्द, और उसी के लिए है, उसी अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में और जो जमीन में है। वलाहुद्दीन वासिबा, और दीन उसी के लिए है हमेशा हमेशा लाजिम। लाजिम। अफा गैरल्लाह तत्तकून, तो क्या तुम अल्लाह के अलावा या गैरुल्लाह से डरते हो? तो अगर तर्जमा करेंगे अल्लाह के अलावा, तो तर्जमा क्या करेंगे? क्या तुम अल्लाह के अलावा किसी से डरते हो? जी बिल्कुल ठीक है। तो गैर वैसे अल्लाह से, साहब क्या तुम यहाँ गैर अल्लाह से डरते हो? यहाँ जो है ना, वलहु मा फिस समावाते वल अर्द है, इसलिए आसमानों और जमीन करना पड़ेगा, जमीन को फिर अलग से जो है वो लेना नहीं पड़ेगा। ठीक। जी, आसमानों और जमीन क्या कहा इन्होंने? जी इन्होंने कहा ना कि उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में है, तो जो यहाँ नहीं बनता, हाँ यहाँ जी, वा जो है ये मिला हुआ है उसके साथ। जो ठीक है कुछ जी, आसमानों में और जो हो गया जमीन जी, में। ठीक। आगे जी क्या है कि अल्लाह ताला बता रहा है कि जब भी कोई तकलीफ होती है, अब 2 मिनट हैं हमारे पास, तो तुम अल्लाह की तरफ रुजू करते हो। तो 2 मिनट हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये मौजू चूंकि अलग है, तो शुरू से हम इसको ज़रा देखते हैं 2 मिनट के लिए। जी अपने कैसर भाई आप तर्जमा करें ज़रा जल्दी जल्दी, तो 3 आयत का 48 तक। जी। औ याखुज़हुम अला तखव्वुफी औ याखुज़हुम फी तक़ल्लुबिहिम फमा हुम बिमुअजिज़ीन, या वो अजाब उन्हें उनके चलते चलते फिरने में पकड़ ले, फमा हुम बिमुअजिज़ीन, तो वो उसे आजिज करने वाले नहीं है। औ याखुज़हुम अला तखव्वुफ तखव्वुफ, या वो अजाब उन्हें उनकी खौफ की हालत में पकड़ ले, फ़इन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम, तो बेशक तुम्हारा रब यकीनन बहुत शफकत करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। अवलम यरौ जी या बस, प्रोफेसर साहब जी, अवलम यरौ, क्या 2 आयत। उन्होंने नहीं देखा, इला मा खलक़ल्लाहु, जो कुछ के अल्लाह ने पैदा किया, मिन शै, हर चीज में से, यतफ़य्यउ, वो ढलती है, जिलालुहु, सॉरी, यतफ़य्यउ उसके जिलालुहु, उसके साए, साए ढलते हैं, अनिल यमीन, दाएं तरफ, व शिमाइल, और बाएं अतराफ में, सुज्जदन लिल्लाह, अल्लाह को सजदा करते हुए, वहुम दाखिरून, और उसी की फरमाबरदारी करते हुए, जी वलिल्लाह, आगे जी। और जी वलिल्लाह, और अल्लाह के लिए, यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सजदा करते हैं, मिन दाब्बतिन, जानदारों में से, वल मलाइकतु, और फरिश्तों में, वहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते, यखाफून, और वो डरते हैं, रब्बहुम, अपने रब से, मिन फौकिहिम, जो उनके ऊपर है, वह यफालून, और वो करते हैं, मा युमरून, जिनका उन्हें हुक्म दिया जाता है। जी अपने कैसर भाई प्लीज। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू आलिहैनि आलिहैनि इलाहैनि इस्नैनि, इलाहैनि इस्नैनि, और अल्लाह ने कहा कि तुम दो दो माबूद मत बनाओ, इन्नमा हुवा इलाहुम वाहिद, बेशक वही अकेला माबूद है। फ़इया या फरहबून, तो सिर्फ मुझ ही से डरो। वलहु मा फिस समावाति वल अर्दी, और उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। वलहु दीनु वासिबा, और उसी के लिए दीन है हमेशा हमेशा लाजिम। अफ़ गैर अल्लाहि तत्तकून, क्या तुम अल्लाह के अलावा किसी और से डरते हो?